مودی کو تو آپ سمجھیں یہ کورونا سے مرا ہی مرا، یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عوام حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لاک ڈاؤن سے بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، حکمران خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اس سارے کورونا کے پیریڈ میں ہمارے 4-5 حکمران گزر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ کھگا۔ ناظرین محترم، ہم لوگ پروگرام فیض عام میں فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ فرازی صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ سب کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے تھے، سب کے چہرے زرد ہو چکے تھے، کسی کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، ہر آواز خاموش ہوتی جا رہی تھی، ہر آنکھ سہمی ہوئی تھی، ہر چہرہ اترا تھا، ہر ذائقہ پھیکا تھا، ہر دھڑکن ٹھہری ٹھہری تھی، ہر آنکھ کی پتلی میلی میلی تھی، ہر طرف موت کا منظر تھا، ہر سانس ٹوٹی ٹوٹی تھی، ہر صورت روٹھی روٹھی تھی، ہر گھر سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، چاند بھی روٹھا روٹھا تھا، وقت بھی مردہ مردہ تھا، ہر شخص تھکا تھکا تھا۔ ناظرین محترم، یہ مرد درویش جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا کی کہ انہوں نے 8 سے 10 سال پہلے روز قیامت میں آج کا منظرنامہ تحریر کیا، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرائض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرائض صاحب، یہ منظرنامہ جو آپ نے تحریر کیا، اس سے پڑھ کے ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ کتاب کا ہر پیج، ہر ورق آج کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت اس منظرنامہ میں لاک ڈاؤن کو ختم کرنا کیسا ہے؟ بڑا اچھا شاہ صاحب آپ نے سوال کیا۔ اصل میں یہ دنیا جو ہے نا جی، کورونا کی وجہ سے غور فرمائیے گا، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک حصہ ہوگا ڈاکٹروں کا، ایک حصے میں ہوں گے، ایک گروپ ہوگا عوام کا، ایک ہوگا حکمرانوں کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں کا ہی زوال ہے۔ حکومت، ہر حکومت پوری دنیا کی، ہر سربراہ عوام سے ڈر گیا ہے۔ اگر وہ اب لاک ڈاؤن ختم نہیں کرتے تو لوگ باغی ہو جائیں گے، بغاوت کریں گے، باہر نکل آئیں گے۔ جیسے پاکستان میں کہ اگر آپ نہیں ختم کریں گے تو ہم دکانیں کھول لیں گے۔ تو حکمران ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ہمارے نہیں، امریکہ کے بھی، فرانس کے بھی، جاپان کے بھی، اسپین کے بھی، انڈیا کے بھی، بنگلہ دیش کے، ہر حکمران یہ سوچ رہا ہے۔ اب دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں۔ مرتے ہیں تو مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ دل میں سوچ رہا ہے مرتے ہیں تو مر جائیں۔ اب جب ہمیں یہ گالیاں دیں گے سڑکوں پہ آ کر تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عوام حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی دنیا کی عوام کا زوال کا باعث ہوگا۔ حکمران مجبور ہو کے لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ابھی نہیں مر رہے سینکڑوں لوگ، اسپین میں نہیں مر رہے، اٹلی میں نہیں مر رہے۔ اور رات کو میں نے خبروں میں سنا کہ اٹلی کا جو سربراہ صدر وزیر اعظم کیا ہے، وہ انتہائی پریشان ہے، وہ لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتا ہے۔ لاک ڈاؤن جو ختم کیا جا رہا ہے وہ عوام کی مجبوری کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ عوام، جیسے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو اسی طرح کاروبار سے ہٹا کے رکھا، لاک ڈاؤن رکھا، تو یہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ شاہ صاحب، کوئی بندہ بھوک سے نہیں مرتا۔
मुजफ्फराबाद में दलदल आया, 15-15 दिन बाद बूढ़ी औरतें जिंदा निकली, ना पानी का घूंट मिला, ना खाने की कोई ग़िज़ा मिली, और मलबे के नीचे से जिंदा निकली। लॉकडाउन से, भूख से कोई नहीं मरेगा, हुक्मरान खौफ ज़दा हो गए हैं। अब ये एक तबका है हुक्मरानों का, एक तबका है अवाम का। अब हुक्मरानों, लेकिन फैज साहब डॉक्टर तो बेचारे दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं कि सुन लें। लॉकडाउन को मत खोलें, मत खोलें, ये बढ़ जाएगा, ये मामला बड़ा सीरियस है। सर यही कह रहा हूं मैं, एक ग्रुप में डॉक्टरों का बना रहा हूं। अगर आप लॉकडाउन रखें या खोलें, अगर 6 महीने, 9 महीने, 1 साल कोरोना चलता रहा, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। आपने अपनी इस किताब में लिखा है कि डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे और हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज मर रहे होंगे। ये लिखा है सर, मैंने यहाँ लिखा है इससे, इस किताब से, इसके अंदर ये शहादत मौजूद है कि डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि वो कहेंगे हम क्यों मरे। भाई कौन किसी के लिए मरता है? एक ग्रुप बन जाएगा डॉक्टरों का, एक ग्रुप बन जाएगा अवाम का, बन चुका आज से, एक ग्रुप बन जाएगा हुक्मरानों का। और ये भी मैं फोरकास्ट करता चलूं, इस सारे कोरोना के पीरियड में हमारे 4-5 हुक्मरान गुजर जाएंगे। अल्लाह अकबर। किस किस मुल्क के, वो नहीं मैं क्लियर करता, चूंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने कोरोना भेजा ही इसीलिए है, और सफाया होगा। और मैं ये बात ये काट न दे मेरी, कि मोदी को तो आप समझें ये कोरोना से मरा ही मरा। अल्लाह अकबर। और इस किस्म के 2-4-6 जालिम हुक्मरान जो हैं, इनका सफाया हो जाएगा, इनका सफाया हो जाएगा। अब ये तीनों ग्रुप दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ होंगे। ये पहला मौका है इस कुर्राए अर्ज पे कि जब सारी दुनिया की रियाया, सारी दुनिया की अवाम हुक्मरानों के खिलाफ होगी। और ये पहला मौका है इस दुनिया में, सारी दुनिया के, इसमें मैंने लिखा हुआ है, इधर देखें, सारी दुनिया के हुक्मरान एक तरफ हो जाएंगे। अब एक छोटी सी और बात करते हुए फिर आप बेशक सवाल कीजिएगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मेरी आज स्पेन के सरबराह से बात हुई, आज मेरी ईरान के हुई, आज फलानी जगह के हुई, आज फलानी जगह के हुई, यानी ये सब लोग राब्ते में हैं। फैज साहब बिलाशुबा आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हुक्मरानों के राब्ते के टॉपिक में आपने सफ़ा नंबर 47 के ऊपर लिखा, तमाम दुनिया के हुक्मरानों के एक दूसरे से राब्ते शुरू कर दिए गए थे, सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे, सब फ़ोन पर बात कर रहे थे, कोई अपने मज़हब का प्रचार नहीं कर रहा था, सब इंसानियत की बातें कर रहे थे, सब एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। बड़े से बड़े ताकतवर मुल्क भी छोटे छोटे मुल्क के हुक्मरानों से बातें कर रहे थे। फैज साहब क्या माजरा है, इतनी ज़बरदस्त पेशीन गोई, इन सारी पेशीन गोइयों के बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो आपने पूरी दुनिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, आपने बताया है कि 3 हिस्सों में बट गए हैं, हुक्मरानों में, अवाम और डॉक्टर्स, इन सब को इकट्ठा यकजा करने के लिए क्या करना होगा? जी सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। और ये जो आपने हुक्मरानों के राब्ते पढ़े मेरी किताब से, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये जितने दुनिया के हुक्मरान होते हैं ना, सबके एक दूसरे से राब्ते होते हैं। जैसे एक फ़कीर का फ़कीर के साथ होता है, गरीब का गरीब के साथ होता है, एक ताजर का ताजर के साथ होता है, ठीक है जी। जैसे एक गाहक का दुकानदार के साथ होता है, इसी तरह हुक्मरानों के राब्ते एक दूसरे के साथ होते हैं। मैं अपने हुक्मरान इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया को ज़िंदगी देना चाहते हैं, अगर आपको आप कोरोना से बचाना चाहते हैं, तो आप सारी दुनिया से राब्ता करें और सब इकट्ठे हों। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस पर अमल करें। आप 1 महीने के लिए पूरी दुनिया को कर्फ्यू दें, जो इसमें है।
पूरी दुनिया को 1 महीने का कर्फ्यू दें, आपसे कोरोना दूर हो जाएगा, टोटल कर्फ्यू। और ये खान साहब कहते हैं ना कि मैं अमेरिका के सदर से बात कर सकता हूँ, मैं फलाने से मैंने की है, फलाने से की है, सबसे अच्छा। दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि यूदो नसारा आपके साथ नहीं होंगे, तो कम से कम जो आपके 55, 56, 57 मुसलमानों के मुल्क हैं वो सारे इकट्ठे कर लें, उनसे तय कर लें कि हम सारे 1 महीने के लिए पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में कर्फ्यू लगाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब 1 महीने का आप कर्फ्यू लगाएंगे, पूरा टाइट किस्म का, लॉकडाउन नहीं, लॉकअप करने, लॉकअप करेंगे। लॉकडाउन तो पता नहीं किसने इजाद कर दिया, लॉकअप करेंगे तो फिर आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। वरना ये तीन ग्रुप आने वाले 12 महीनों में एक दूसरे को खाने लगेंगे। अवाम कहेगी कि इन्होंने हमें, मतलब ये ज़बरदस्ती चाह रहे हैं ना लॉकडाउन ख़त्म करना। अवाम फिर मलबा डालेगी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट और अवाम दोनों लड़ेंगे और डॉक्टर बरियुज़िम्मा होंगे। भाई डॉक्टर का आप गिरबान तो नहीं पकड़ सकते कि मेरा इलाज कर। तो यही एक हल है कि 1 माह के लिए 30 दिन इस किताब के अंदर मौजूद हैं। आपने पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगाना नहीं लगा सकते तो कम से कम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जरूर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लगा ले। तो यही इसका हल है, ये इसका हल नहीं है। आप 15, 16, 17 तारीख को देख लें कि पाकिस्तान में क्या फसाद खड़ा होता है, दुनिया को छोड़ दे। भाई कौन सी औरतें घर में बैठेंगी, कौन से मर्द घर में बैठेंगे, कौन इस बात का ख्याल करेगा। हमारे पास 80% तो अनपढ़ लोग हैं, मेरे जैसे जाहिल लोग हैं। कौन इस बात का ख्याल करेगा कि मुझे वायरस लग रहा है। तो फिर जो आप लोगों को बंद करेंगे, मेरा दावा है फाके से कोई नहीं मरता। मुझे आप कहीं बंद कर दें, मुझे पानी और छोटा मोटा कुछ देते रहे, 1 महीना जीने दें मुझे, मैं मर जाऊं तो मुझे इमरान खान साहब पकड़ लें। मत डरें इस बात से कि लोग मर जाएंगे। बुलाएं सारे मुसलमानों को, सारे मुसलमान सरबराहों से बात करें, भाई हम इसका हल निकालते हैं, बाकी दुनिया को छोड़ दें, यूरोप को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, बस यही हल है। फरैज साहब, आप हमारे नाजरीन से बात करें और रहनुमाई करें कि हमें क्या करना चाहिए। नाजरीन, बातें तो बड़ी हो चुकी सारी, लेकिन एक आधे मिनट के लिए सिर्फ इतनी बात है। अगर हम अवाम हुकूमत को कहते हैं कि ये लॉकडाउन खोल दिया जाए, हम क्या रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करते हैं? हम 120 किलोमीटर की स्पीड पे जब लिखा होता है मोटरवे पे, उसका एहतराम करते हैं? हम इस बात का एहतराम करते हैं कि अल्लाह कहता है हलाल खाना है? हम इस बात का एहतराम करते हैं कि अल्लाह कहता है झूठों पर मेरी लानत है? तो हम इस बात का एहतराम किस तरह करेंगे कि हमने एक दूसरे से दूर रहना? अगर आप एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे तो फिर माफ कीजिएगा, फिर दुनिया से दूर हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल सारा कहता है कि इसका इलाज ही दूर रहना है। अगर आपने इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया से दूर नहीं होना, तो फिर आप इसका एहतराम ना करें। अगर आपने दुनिया छोड़नी है, आपने खुदकशी करनी है, आपने हलाक होना है, आपने अपने आप को मौत के हवाले करना है, तो फिर आपकी मर्जी, फिर आप इसका एहतराम ना करें जैसे हम और चीज़ों का नहीं करते। जी शाह साहब। फैज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन मोहतरम, औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब की किताब रोज़े क़यामत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसी किताब की सिलसिलावार गुफ्तगू के साथ दोबारा मिलेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।